Very important point, very pertinent point made by the External Affairs Minister. Like COVID, in terror, unless everyone is safe, no one is safe. Let's now shift focus to our other big story. There is fear that stalks the streets of Kabul, and not just Kabul, but almost across Afghanistan, as desperate Afghans try and flee this Taliban 2.0. Women, they're in tears. Men are desperate enough to cling on to undercarriage of C-17 Globemaster aircraft in a desperate effort to escape. And yet, some in India are hailing the return of the Taliban, saying words to the effect, this is victory of faith and belief over a superpower. Take, for example, poet Munawwar Rana. He is considered as a liberal intellectual by some. He finds more cruelty in India than in Taliban's Afghanistan. Our political bureau gets us more. तालिबान से हिंदुस्तान को डरने की जरूरत महसूस होती है? लगता है कि तालिबान से डरना चाहिए, खतरा है? बिल्कुल नहीं। समझे आप, ये इस किस्म की जितनी वो क्रूरता उनके यहाँ है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है। A shocker from famous poet Munawwar Rana. He believes there's more cruelty in India than in Taliban-held Afghanistan. अहिंसा रही होगी भगवान राम के जमाने में, नहीं। अब रामराज कहाँ है? अब तो कामराज है। बस अगर भगवान राम से काम है तो ठीक है, तो कामराज है, रामराज नहीं है, बिल्कुल रामराज नहीं है। And that's not all. Munawwar Rana, who's been known to make some rather controversial statements even in the past, believes that there are more assault rifles held by the mafia in India than the entire Taliban in Afghanistan, who he insists will never harm India. AK-47 उनके पास नहीं होंगे, उससे 2 गुना तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के माफियाओं के पास हैं। तो इससे क्या? तालिबान से ज्यादा? यस, वो तो छीन के लाते हैं, मांग के लाते हैं, कहीं से चुरा के लाते हैं, जैसे भी लाते हो। हमारे यहाँ तो खरीदते हैं, मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हर तरीके के हैं। And Munawwar Rana is not an isolated voice. As armed Taliban fighters rolled into Kabul, Samajwadi Party MP from Sambhal, Shafiqur Rahman Barq, compared the gun-toting Taliban fighters to India's freedom struggle. हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते हैं, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। Once the police started investigating the case, Shafiqur Rahman Barq insisted he'd been quoted out of context and that he was never a supporter of the Taliban. मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? मैं क्यों राय इसमें अपनी राय? मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, मुल्क की जो पॉलिसी बनेगी या जो होगा मैं मुल्क के साथ हूँ। बस ये तोड़ मोड़ का मेरा बयान गलत बयान किया। And soon enough, Maulana Sajjad Numani also praised the Taliban victory over the United States, calling it the victory of faith and belief. आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath came out all guns blazing, singling out those who praise the Taliban. He insists such a mindset needs to be exposed. अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। And he's not the only one. Party leader Rameshwar Rana asked those who praise Taliban to live in Kabul instead.
मुनव्वर राणा जी, अगर हिंदुस्तान की धरती पर क्रूरता होती तो आप बोल नहीं पाते, आप चौराहे चौराहे पिटते। मैं अब तो योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि इसकी शायरी जरा पुलिस काल थाने में करा दी जाए और पुलिस इसको अरेस्ट करे, उत्तर प्रदेश की पुलिस, और फिर इससे पूछे कि ये बता कि कौन सी जगह तालिबान से ज्यादा जो है AK-47 वो है सदा, और किस किस के यहां रखी है। The police have registered a case against those who praise the Taliban. ये पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा ऐसे मुद्दों पर पहले बयान दिलवाता है और जब फंस जाते हैं तो ऐसे अपने आप को अलग कर लेता है। कैसी तरबियत देते हैं कि 90 साल के बुढ़े इनके गलत बयान देते हैं और हमेशा जो है देश को तोड़ने की बात करते हैं, कभी देश को जोड़ने की बात नहीं करते। The Taliban may have opened fire on unarmed Afghans. Hundreds may have been braving bullets, rushing to airports amidst the Taliban gunfire, and even clinging on to the undercarriage of giant C-17 Globemaster aircraft to escape torture by Taliban. Yet, some in India continue to praise the Taliban. Bureau Report, India Today. Incidentally, Pakistan's Prime Minister Imran Khan too praised the Taliban. He endorsed Taliban taking over Kabul. He said Afghanistan has broken the shackles of slavery. जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं? आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। So, who are these people who praise the Taliban and why in India? For Imran Khan, we can understand. But how many biradars of Taliban in India? And why this praise for a group that has Afghan people, fellow Muslims on the run, running away for their dear lives? Joining me on the show is Bilal Khan, a respected Muslim scholar and analyst. Zeenat Shaukat Ali is the founder and director general of the World Institute of Islamic Studies, and RP Singh represents the Bharatiya Janata Party. But Bilal Khan, what do you make of this high praise for the Taliban by some Muslims in India when Muslims in Afghanistan are being shot at and are clinging on to undercarriage of aircraft to escape the Taliban? बिलाल खान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिलाल खान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि ये क्या मानसिकता है कि तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, और मतलब चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क हो, सज्जाद नोमानी हो, मुनव्वर राणा हो, ये क्या मानसिकता है कि अफगानिस्तान के मुसलमान तो भाग रहे हैं तालिबान से और भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो तालिबान के ऐसे पक्ष में कसीदे पढ़ रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले नहीं, वो टीवी का वॉल्यूम पहले बंद कर दीजिए। टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए आप देश से बढ़कर कुछ नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हिंदुस्तान है उसमें पूरे भारत का मुसलमान हो, चाहे वो तो कोई भी कम्युनिटी का लोग हो, वो बिल्कुल सुरक्षित है। इसे कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। जितना हमारा देश सेकुलर है, जितना सेफ टेरिस्ट है हमारा देश है, उतना कोई देश नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप टारगेट करते हैं और चीजों को, उसने क्या बयान दिया, शफीकुर रहमान साहब ने क्या कहा, चाहे मुनव्वर राणा जी ने क्या कहा, तो आपको सब सोचना पड़ेगा किस तरीके से सरकारें उनके खिलाफ कर रही है, वो पूरा देश जानता है। ये शुरू से आज जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार आई है, जब से उनको टारगेट किया जा रहा है, तभी उनके घर में पुलिस भेज दी जाती है। आपको मालूम है वो कितने बड़े देश के शायर हैं, उन्होंने एक से एक बड़ा अवार्ड जीता है शायरी में। लेकिन क्या होता है, लेकिन होता यह है कि भाई किसी भी नहीं, शायरी में अवार्ड जीता तो तालिबान के कसीदे पढ़ेंगे किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के आयन को, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के एक फैसले को मानेगा, जो वो अपना स्टैंड क्लियर करे तालिबान के ऊपर। क्या स्टैंड है?
अभी तक यही नहीं पता कि तो जब तक सरकार स्टैंड नहीं करेगी तब तक तालिबान के गुण गाएंगे, चाहे तालिबान महिलाओं को पीटे, चाहे लोगों को मारे। कोई कैसी बात हुई है? क्योंकि पहले तो नहीं, पहले तो हिंदुस्तान में भी डर लगने लगा था, या अब डर का असली चेहरा देख लिया बिलाल खान? नहीं बिलाल खान, अब डर लग रहा है हिंदुस्तान में, या अब असली डर देख लिया? असली डर देख लिया तो अब हिंदुस्तान में डर लगना बंद हो गया। लोगों को अगर भारतीय लोगों को मारना है या कोई सी इंसानियत के एक इंसान को भी मारने कत्ल करने वाले तालिबान है, सही बात है। हम ये तालिबान को जाके बताइए, ये प्रवचन तालिबान को करिए जिनके कसीदे पढ़े जा रहे हैं इस समय। बट जीनत शौकत अली, आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, जीनत शौकत अली, what do you make of Munawwar Rana saying that there is more cruelty in India than by Taliban in Afghanistan? Is this Zinat Shaukat Ali a not so subtle attempt to normalize the atrocities of the Taliban? Absolutely, and I think it's a ridiculous statement which needs to be condemned. How can you compare, the Taliban who are regressive? Their whole philosophy is regressive and needs to be condemned. They are so barbaric that they're drawing a country and its society into the dark ages. They're treating women like chattels, killing them, stoning them, sexual abuse of women, insult in public, and even today women are not, are refused. They refuse admission. I believe today to a lady who went to a university for admission, and they have killed the children. What happened to Malala Yousafzai? How did she run? She was being killed simply because she was trying to educate herself and she wanted to educate herself. This is absolutely against the norms of Sharia and Islam that they seem to talk about. That twisted and bigoted interpretation I cannot understand, because there are 805 verses in the Quran which are dealing with education, ilm and its derivatives, telling you to learn. And the Prophet has said it is a religious duty of every man and woman to seek knowledge. Yes. So on what basis can you say that those people are fine and we over here are not? And on what basis are they praising the Taliban? It just defies logic. It absolutely defies logic. Absolutely defies logic. I agree with you. But RP Singh, Munawwar Rana says Taliban has never harmed India. Why would then a BJP leader like Rameshwar Rana seek that somebody like a Munawwar Rana should be sent to Taliban-controlled Afghanistan? Well, Gaurav, खाना यहाँ का और गाना तालिबान का, ये मुनव्वर राना साहब की खासियत है. And then what did BJP leader said? If he is so fond of Taliban, let him be sent to Afghanistan and let him stay with Taliban. Let me take it further. I mean, why only Munawwar Rana? I mean, I appreciate even Shafiqur Rahman Barq Sahab and even Sajjad Nomani. And even Munawwar Rana, all those who are praising Taliban and saying that they are good people, they have changed, they are not militants anymore, they will not harm anyone. So let them take their daughters, granddaughters along with them. I'll pay the money for their airfare, or need be hire a special charter plane for them. I'll do that for them, for their families. Let them stay with Taliban, and if after 1 year they can come back, they are safe there, we'll accept what they are saying. But fact is that is something else, Gaurav. Okay. Is that, allow me to complete, it's something else. It's not praising Taliban. They are simply trying to hit the Indian constitution. They are trying to hit the India as a country. The idea of the India. No, that's a very grave charge. No. On what basis? No. RP Singh, on what basis? On what basis are you saying that this is an attack on the Indian constitution if they're praising the Taliban? How? Give me a second. Allow me to complete. The idea of India, when they say that in India people are more cruel than Taliban. That's what Mr. Munawwar Rana said. He's saying that in India people are more cruel. There are more guns in India. What is he saying? There are more guns in India than the Taliban has. So it's challenging the framework of the Indian constitution. I mean, they don't rely on the Indian police. They don't rely on the Indian constitution. They don't rely on the state police. Bilal Khan. That's why he's saying. Bilal Khan, इस बात का उत्तर दीजिए. And before I bring in Bilal Khan, Zinat Shaukat Ali, do you agree that this is an attempt and is being made systematically? They are praising the Taliban.
in your appreciation, is this a mindset that they want Taliban kind of an administration, or they want to have that Taliban kind of rules in India? They want to control lives of women. They want to ensure that their diktat runs. Is this the attempt, Zeenat Shaukat Ali? Yes, I think I think you see, if you look at the pattern that we have been following in recent times, especially with the triple talaq issue, and with other issues relating to women, you always find that they're trying to subdue women. Now, what are the Taliban doing? The Taliban have created a gender apartheid, I think. You see, by cordoning women off, segregating them, destroying their creativity, and over here also that mindset, you see, that narrow mindset that this is what women are meant to do, this much and no more, and this is what, bringing in religion and bringing in the contour, within the contours of religion, which is absolutely incorrect. Let me tell you, as a very humble scholar of Islam, this is incorrect. So therefore, I feel, I agree with you there, that, the creation of this mindset, and that is, I think, very dangerous. Okay. Because what have the Taliban done except shown us violence, shown us brutality? अरे बिलाल खान, जवाब दीजिए. ज़ीनत शौकत अली वो तो एक इस्लामिक स्कॉलर है, उन्होंने तो कुरान शरीफ का अध्ययन भी किया है, पढ़ा भी है, और वो कह रही है जो तालिबान कर रहा है वो गलत है. तालिबान का काबुल पर कब्जा करना, उसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम से कैसे उसकी तुलना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं. देखिए, मैंने तालिबान को सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन अपने हिंदुस्तानी जो लोग हैं, चाहे वो शफीकुर रहमान साहब हो, चाहे मनोवर राणा जी हो, चाहे हमारे मौलाना मुफ्ती साहब हो, अगर उन्हें बयानबाजी करी तो आप उनको ये नहीं कह सकते उनको देश से निकालिए, उनको आतंकवादी या ये कानून के खिलाफ बोल रहे हैं. अगर कोई इंसान अपनी राय रख सकता है तो कोई तालिबान के, अगर तालिबान से नहीं, राय जरूर रखिए. मैं तो उनकी मानसिकता जानना चाहता हूँ. क्या है ये मानसिकता जो तालिबान के कसीदे पढ़ रहे हैं? आप उससे उनकी मानसिकता का अंदाजा नहीं लगा सकते. कोई इंसान को आजादी नहीं है, फंडामेंटल राइट हमें सिखाता है. अगर हम किसी बात पर बोल रहे हैं तो हम देश के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं. अगर देश के खिलाफ है तो हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले देश है, सबसे पहले भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे जो गवर्नमेंट है उसके हमें हिसाब से चलना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर तो देश को तोड़ने की बात है. एक एक करके बिलाल खान पहले अपना पक्ष रख ले, फिर आरपी सिंह. मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ. जिस तरीके से जंतर मंतर पे पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा, मुल्ले काटे जाएंगे, मुसलमानों को देश से बाहर निकालो, पिंकी चौधरी जैसे लोग, तो ऐसे लोग के खिलाफ कार्रवाई होती है. ऐसे लोग की तारीफ लिबरल इंटेलेक्चुअल तो नहीं करते. मुनव्वर राना तो लिबरल इंटेलेक्चुअल. ठीक, हमारे नबी पूरे दुनिया के मुसलमानों के नबी है, जो पूरे मुसलमानों के इस्लाम के नबी है, उनके खिलाफ इस तरीके से अल्फाज गुस्सा के रसूल, वो नरसिम्हा नंद, नहीं तो मेरा प्रश्न तो तालिबान पर है. मेरा प्रश्न तालिबान पर है. आप उसको अपने धर्म पे लेके जा रहे हैं, आप अपने धर्म की आड़ में जा रहे हैं. आप धर्म की आड़ में जा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई धर्म की आड़ में कुछ बोल देगा तो फिर आप यही बोले जाएंगे कि ये कैसे बोल दिया आपने. मैंने सिर्फ नबी की बात किसने की? हम लोगों ने तो नहीं की. हमने तो तालिबान पर प्रश्न पूछा. हमने तो तालिबान पर प्रश्न पूछा. आप घुस गए वहां दूसरी दिशा में. ज़ीनत शौकत अली, क्या ये यही मानसिकता है? ज़ीनत शौकत अली, नहीं भाई साहब, ये क्या मानसिकता है ये हम भी जानना चाहते हैं. क्या मानसिकता है ये तालिबान के कसीदे पढ़ने की मानसिकता? ज़ीनत शौकत अली आपको जवाब दे रही है इस मानसिकता को. हम जवाब दे रहे, जवाब नहीं सुनते आप. अरे आप जवाब देने के बाद में दाएं बाएं चले जाते हैं. हिम्मत है तो डंके की चोट पे जवाब दीजिए ना कि आप तालिबान के गुणगान करते हैं. तालिबान जो 20 साल पहले था वो तालिबान को मौका देना चाहिए. जिस तरीके से आज देश के अंदर हमारे देश का कितना 3 बिलियन राज तालिबान पे लगा हुआ है, ये भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा. अच्छा, तालिबान जो 20 साल पहले था वो नहीं है, ये आपकी राय है या ये आपके ज़ीनत शौकत अली, बिलाल खान का कहना है जो तालिबान 20 साल पहले था वो नहीं है, ये बिलाल खान की राय है, ये इस मानसिकता की राय है संभवतः. हमारी इकोनॉमिक ज़ीनत शौकत अली, अब जवाब दीजिए. हाँ, अब बिलाल खान आप चुप रहिए. ज़ीनत शौकत अली जी आप उत्तर देंगी. अब बात सुनिए. देखिए, जो जंतर मंतर की बात आपने की, जब जंतर मंतर में कुछ भी हुआ तो आपको ये हक था कि आप उसके ऊपर सवाल उठाएं, और आपने उसमें सवाल उठाए, क्योंकि हमारा जो देश है वो सेक्युलर डेमोक्रेसी है, जहां वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जहां आप पूछ सकते हो कि क्या हुआ. अगर ये बात तालिबान के साथ होती और उनके खिलाफ आप कोई बात करते तो सीधा आपका
आपका गला कलम करके रख देते जनाब। मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे, आप समझिए, आप उनका कंपैरिजन हमसे कर नहीं सकते हैं। नहीं, ये हमारे देश का अपमान कर रहे हैं इस तरह का कंपैरिजन करके। जो लोग इस तरह का कंपैरिजन करते हैं, मतलब ये तालिबान को नॉर्मलाइज करते हैं और हिंदुस्तान का अपमान करते हैं। हाँ, हमारे देश का अपमान नहीं चलना चाहिए। आरपी सिंह, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के एमपी को क्यों कोट रहे? आरपी सिंह वो कह रहे हैं कि ही इज बीइंग कोटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। He stands by whatever the government says and he has not praised the Taliban. He will do whatever government of India takes a stand. Well, that is a U-turn he has taken. Sorry. आप कह रहे हैं? Yes, आप बोलिए, please. Let her answer, please. Okay, Zeenat Shaukat Ali, first you, ma'am. I was only saying that, when the Honorable Prime Minister has not made a statement. So why are we making statements? Who are these people to make statements, or who's anybody to make a statement? You have to wait till what the Honorable Prime Minister is saying. He knows the situation. He's sitting somewhere. He's leading this country. Till he does not speak, how can we speak? And why should we speak? That is my objectionable point. No, you raised a fair point, ma'am. And if I may, अभी कई भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। जब तक उनको सुरक्षित नहीं निकाला जाता, एवरीवन नीड्स टू बी केयरफुल। बिलाल खान, और आप बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला, तब तक ऐसे लोग कसीदे पढ़ेंगे तालिबान के। जब देश के अंदर बोलेंगे तो हर चीज में मौन है। इस तरीके से जामिया के स्टूडेंट जो हमारे जर्नलिस्ट भी रहे, फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी, वो मेरे खुद दोस्त हैं। अच्छा, तो उस पर लेकिन आप तालिबान के कसीदे पढ़ेंगे? आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, तालिबान के कसीदे पढ़ने का क्या मानसिकता है ये? जब भी मौन थे, प्राइम मिनिस्टर जी क्यों नहीं बोलते? हम तो आपने एक बार तालिबान की भर्त्सना की जिस तरह दानिश सिद्दीकी को यातना देकर मारा? बिल्कुल की हमने। या उस समय आप यही तालिबान को आपको उससे ज्यादा क्रूरता तो आपको भारत में नजर आती है? एक ट्वीट तक नहीं करा देश के प्राइम मिनिस्टर ने, ट्वीट क्यों नहीं करा दानिश सिद्दीकी? देश के नहीं थे क्या वो? कितने बड़े पत्रकार थे, आप खुद जानते कितने बड़े फोटोग्राफर थे वो जामिया। और तो फिर मुनव्वर राना सही है कि मुनव्वर राना फिर भी तालिबान के कसीदे पढ़ रहे हैं? दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी, और मुनव्वर राना गाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के शफीक उर बर्क गाए जा रहे हैं। वो कोई हिंदुस्तान नहीं है कि उन्होंने कुछ बोल दिया तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बोल दिया। उन्होंने अपनी राय रखी, अपनी बात करी। अगर अरे और आप जैसे लोग उसको डिफेंड कर सकते हैं। जीनत शौकत अली ये एक आदमी नहीं है। जीनत शौकत अली, जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, what is extremely disappointing is the fact, आप 2 मिनट चुप रहिए सर, what is extremely disappointing that this isn't an isolated voice. This is not an isolated voice. This Munawwar Rana is considered a liberal intellectual in our country. Award Wapsi, he was a part of that award Wapsi. Then you have these people who are praising the Taliban. I fail to understand, ma'am. I fail to understand what is this mindset. Can you help us understand this mindset? Praising the Taliban that fires on unarmed civilians and whip women? This mindset itself is incorrect and needs to be corrected. You have to understand that people who are murdering, people who have murdered, people who have killed, people who have indignified, and as for women, they have almost destroyed them. From 8 years of age, they are not allowed to go to school. And this is anti-Islamic. They are not doing anything in consonance with Islam. Islam is teaching you peace. Islam is teaching you education. Islam is teaching you to go ahead. And if I may quote, so I want you to know that even the Prophet, may peace be upon him, and his wife, who are known as the Al-Mu'mineen, it was his Hazrat Khadija who received the first message of Islam. The Prophet told her the first message. His wife Aisha led a battle. She led a battlefield. She was leading a battle. His wife Hafsa had a copy of the Quran that we are reading today. She had the entire compilation that the Prophet had done. This was a leading, and this is just a little. Women went to mosques. Women took part in social activities. All these things that we are doing today, I don't know how they do. How can they bring the name of Islam and do it? You can do it because you want to do it, say that. But don't involve religion. And here religion is being misused. I would say that it is being misused for the wrong reasons. Okay. And you cannot say things. Religion has taught you to love your country.
Yes. Religion has taught you to respect your country. And I'm you sure cannot- religion never teaches you to praise people who are firing at people. Bilal Khan, Absolutely. I'm How sure can you no say religion, that? Bilal Khan, Those people would could be your mother, they could be your wife, they could be your daughter. Yes. और बिलाल खान ये बताइए, अगर तालिबान इतना ही अच्छा है, वो क्या कह रहे हैं जी? सज्जाद नुमानी क्या कह रहे हैं? हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, हाँ, और आपकी जुर्रत को सलाम करता है, ये कह रहे हैं सज्जाद नुमानी। दरअसल में नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ, अफगानिस्तान के मुसलमान प्लेन से लिपट के भाग रहे हैं और हिंदुस्तान का मुसलमान सज्जाद नुमानी कह रहे हैं हम आपका सलाम कर रहे हैं। आपको ये सही लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सज्जाद नुमानी साहब हो या मुनव्वर राना साहब, वो हिंदुस्तान नहीं ना, हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज है वो। नहीं, लेकिन हिंदुस्तान, वही तो कहा, हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। बात तो सुन लीजिए आप, यही लोग नहीं, तो आप कहते वो गलत है, आप मानते वो गलत है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप मानते वो गलत है कि नहीं? आप मानते वो गलत है कि नहीं है? तालिबान के नाम पर राजनीति करना बंद कर दीजिए, मेरा कहना साफ। आप ना तालिबान की भर्त्सना करने की हिम्मत रखते हैं, ना इन लोगों की जो कहते हैं हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। अरे क्या ये सही है कि गलत है? हमारा देश है, क्या ये सही है कि गलत है? जो हमारा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सेफ है। अरे बिलाल खान, चलिए, आज है, आपने माना तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान सेफ है, वरना तो बड़े मुसलमान यहाँ पर कह रहे थे, बड़ा डर लग रहा था उनको। आरपी सिंह, लेकिन आरपी सिंह, देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू नो, व्हाई रजिस्टर FIRs? दिस इज इंटिमिडेशन। व्हाई थ्रेटन मुस्लिम्स? व्हाई थ्रेटन देम, दोज हु मेक praise Taliban? Why register FIRs against them? Sir, this is intimidation according to Bilal Khan. बिलाल खान हो गया यार, हो गया। धन्यवाद बिलाल खान। मैंने आपके 100 कत्ल आज माफ कर दिए जब आपने ये कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान सेफ है, हिंदुस्तान का मुसलमान दुनिया के मुसलमान से अच्छा है। ये तो जो आपने शुरू में कहा था ना कि तालिबान 2 बदल गया है, मैं आपको कुछ कहने वाला था, सचमुच माफ किया आपको, और आपका सचमुच मैं स्वागत करता हूं बयान का। बिलाल खान साहब, मैं आपके बयान का अब उनको उत्तर देने दीजिए, फिर मैं आपको बोलने भी दूंगा। एक एक करके तीनों जने बोलेंगे। बिलाल खान साहब, मैंने तो आपको टोका नहीं, एक बार मैं आपकी बात का स्वागत करता हूँ जो आपने कहा, पर गौरव, I mean, there's no intimidation on anyone as such. Its only thing is that people should know till what extent they can go. Can you compare the Indian freedom struggle with what's happening in Taliban, what's happening in Afghanistan? Can you compare that with that? Well, there are some who are comparing. Something. No. So that's why they have to face the tune of the law. I mean, there's nothing wrong in it. Someone would have gone to the police station, filed a complaint, and let police take action accordingly. And that's why there's a U-turn in the statement also. And so I'm saying, all those who are so much have love for Taliban, all these elderlies, I'll appreciate. I'll fund that. I'm saying that. And if Bilal Sahab also want to send someone, please take your granddaughters, stay there for 1 year. If you are safe, we'll accept you. ठीक है, तो मतलब जो तालिबान की प्रशंसा कर रहा है वो सपरिवार जाए, रहे अफगानिस्तान में साल 2 साल। आप ये कह रहे हैं? नहीं, लेकिन बिलाल खान, बिलाल खान, ये सिर्फ देखिए, सिर्फ एक मुनव्वर राना, ठीक सर, ठीक, सिर्फ एक मुनव्वर राना या एक शफीकुर रहमान बर्क या सिर्फ एक सज्जाद नुमानी की बात नहीं है। मुफ्ती अरशद फारूकी ने भी तालिबान को, उन्होंने उसकी तारीफ की है, और ये किस तरह की तारीफ है, जो वो कह रहे हैं कि कोई तो बात होगी कि तालिबान ने 3.5 लाख की अफगानिस्तान की सेना को हरा दिया। अफगानिस्तान की सेना का क्या धर्म है, तालिबान का क्या धर्म है? मैं तो आपसे यह जानना चाहता हूं, ये किस तरह की मानसिकता है, किस तरह का सपना है ये? क्या वो चाहते हैं कि जो तालिबान कर रहा है वो इस देश में भी हो? क्या ये इनका सपना है कि जैसे तालिबान बामियान बुद्ध में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को तालिबान ने ध्वस्त किया और अभी अब्दुल अली मजारी की प्रतिमा को ध्वस्त किया, क्या यही मानसिकता वो इस देश में भी करना चाहते हैं? बिलाल खान, पूछो सलीमा मजारी कहाँ है? सलीमा मजारी कहाँ है? ठीक, सलीमा मजारी कहाँ गई? जो तालिबान को प्रेज कर रहा है, जरूर बताए कि सलीमा मजारी तो महिला है, मुस्लिम महिला है, माना वो हजारा है, लेकिन उनका अपहरण हो गया और ये तालिबान के कसीदे पढ़ रहे हैं। बिलाल खान, नहीं, आपका वॉल्यूम कम हो गया, दोबारा बोलिए। जी बोलिए। तालिबान के कोई कसीदे नहीं पढ़ता, तालिबान सुनिए,
जिस तरीके से देश के अंदर ये नफरत फैला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, तो मुनव्वर राना भारतीय जनता पार्टी के हैं, मुसलमानों को इस्लाम शफीकुर रहमान बर्क भारतीय जनता पार्टी के हैं। धर्म के अंदर छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम किया गया, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। नहीं, उस पर कोई इंसानियत शफीकुर रहमान बर्क भारतीय जनता पार्टी में कब आए? इंसानियत जिंदा है, क्यों आपको हमेशा मुसलमान और इस्लाम को टारगेट करने का काम मिलता है? आपकी मानसिकता रह गई है किस तरह मुसलमान और टारगेट करते थे, इस्लाम को टारगेट, मजाक बना के रखा मुसलमानों का इस्लाम का आप लोगों ने। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हमेशा इनकी ये रहेगी, क्यों नहीं चिमनियानंद जैसे लोग जो देश के अंदर जो 45 साल तक उम्र की बेवे है, उसको उठाया जा रहा है, वो भी मुसलमान है। हमारा देश ये हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है, इसके लिए हम अपनी जान दे देंगे, गर्दन कटा देंगे हिंदुस्तान के लिए। चलिए सोच के साथ है, ये बड़ी बात है। चलिए, एक बात तो है, एक बात तो है, एक बात तो है बिलाल खान, देखिए आप भले ही राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहें, वो राजनीति है, जरूर कहिए, जरूर कहिए, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है। और ये ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर आपको लगता है कि इन लोगों ने जो कहा वो गलत है, तो आप उसकी भर्त्सना कीजिए। अगर गलत है, देखिए जीनत शौकत अली में हिम्मत है, वो सच बोलती हैं, लेकिन आप लोग सच बोलने में डरते हैं, या आपको ये मानसिकता सही लगती है? ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है बिलाल खान कि तालिबान, ये आप खिलौना बना के रखिए। अच्छा, सही बात है। और जो मुनव्वर राना तालिबान के कसीदे पढ़े वो आपके लिए ठीक है? आपको लगता है वो ठीक है? इस देश में, हिंदुस्तान में रहेंगे और तालिबान के कसीदे पढ़ेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे, लेकिन बात तालिबान की करेंगे। हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, किस तरह की भाषा है ये? किस तरह की भाषा है? हिम्मत है तो बोलिए कि ये गलत है, और अगर नहीं है तो मानिए जो आप कर रहे हैं वो इस देश के लिए गलत है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं ऐसा करने की। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस तरह की मानसिकता इस देश में पनपती है। और संभवतः यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब ऐसे लोगों को बेनकाब करने का समय आ गया है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल इतना ही। We will continue to track developments of this story. There are people like Bilal Khan. There are people like Shafiqur Rahman Bark. There are people like Sajjad Nomani. There are people like Munawwar Rana who praise the Taliban, who continue to praise the Taliban despite the atrocities committed by Taliban in this country. We'll track this story closely.